کہتا ہے صحیح مالی برتاؤ کریں آپ کا بچاؤ۔ ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ آتم نربھر بھارت کی تعمیر میں سٹارٹ اپس کا کلیدی رول، وزیر اعظم نریندر مودی کا قومی سٹارٹ اپ ڈے کی تقریب سے خطاب۔ معراج عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج وادی بھر کی مساجد، خانقاہوں اور زیارت گاہوں میں شب بیداری کی روح پرور مجالس ہو رہی ہے آراستہ۔ وادی کے بالائی علاقوں میں تازہ برفباری شروع، آنے والے دنوں میں مزید برف و باران کا امکان، اور یوم جمہوریہ سے قبل وادی میں حفاظتی انتظامات سخت، بخشی اسٹیڈیم کے گرد و نواح میں اضافی حفاظتی دستے تعینات۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سٹارٹ اپس آتم نربھر بھارت کی تعمیر میں کلیدی رول ادا کر رہے ہیں اور 10 سال کے مختصر عرصے میں سٹارٹ اپ انڈیا مشن ملک میں ایک انقلاب کے طور پر ابھرا ہے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے نئی دلی میں بھارت منڈپم پر سٹارٹ اپس کے قومی دن کے موقع پر سٹارٹ اپ انڈیا کی ایک دہائی پوری ہونے سے متعلق ایک تقریب میں شرکت کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ملک کے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو مزید مستحکم بنانے کی خاطر سبھی متعلقہ فریقوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ موقع نوجوانوں کی ہمت، اختراع اور کاروباری جذبے کا جشن منانے کا ہے، جنہوں نے عالمی سٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں بھارت کی پوزیشن کو مضبوط بنایا ہے۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے اس موقع پر کہا کہ بھارت کا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم پچھلے دہائی میں ایک تاریخی سنگ میل رہا ہے۔ سٹارٹ اپ انڈیا مہم کے 10 سال مکمل ہونے پر کشمیر میں چھوٹے کاروباریوں نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس مہم کے طفیل انہیں اپنا کاروبار شروع کرنے میں آسانی ہوئی۔ فوڈا اننت ناگ کے ایک سٹارٹ اپ کاروباری ساحل احمد گنائی نے بتایا کہ اس پروگرام کے ذریعے انہیں اپنا کاروبار قائم کرنے میں مدد ملی۔ بشیر احمد نامی ایک اور نوجوان کاروباری نے کہا کہ سٹارٹ اپ مہم سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے وسیلے پیدا ہو گئے۔ ہم نے یہ کارخانہ پہلے سٹارٹ کیا تھا، یہ چھوٹا کارخانہ تھا اس وقت، پھر ہم نے رابطہ کیا KVIB ٹیم اننت ناگ کے ساتھ، انہوں نے ہمیں سکیم بتائی، اس سکیم کے تحت انہوں نے ہماری مدد کی اور یہ آج اتنا بڑا کارخانہ بنا ہوا ہے ان کی ہیلپ سے۔ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں یوتھ سے، آپ ان کے ساتھ جڑیے اور ان سکیموں کا فائدہ اٹھائیے۔ یہاں پر 10 لوگ کام کرتے ہیں۔ دریاسنا سکاسٹ کشمیر کے انوویشن، انکیوبیشن اینڈ انٹرپرینیورشپ سینٹر نے بھی قومی سٹارٹ اپس ڈے کے سلسلے میں مشن یووا کے انوویٹ ایکس کے تحت ایک تقریب منعقد کی، جس میں یہاں کے سٹارٹ اپ سے تعلق رکھنے والے کئی افراد کے ساتھ یونیورسٹی کے زرعی سائنسدانوں اور اساتذہ نے شرکت کی۔ پروگرام کا مقصد کشمیر صوبے میں سٹارٹ اپس میں اختراع کاری کو مزید فروغ دینا تھا۔ خبریں جاری ہیں، پہلے رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے۔ اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا، 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 اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا۔ خائبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے۔ خائبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے آج آنے والے بجٹ سیشن سے قبل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس سلسلے میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اسپیکر نے متعلقہ محکموں کو مکمل تال میل کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے اجلاس کے لیے جامع سیکورٹی انتظامات کرنے اور دیگر لازمی سہولیات دستیاب رکھنے کی بھی ہدایت دی۔ اسپیکر نے بجٹ سیشن کی کوریج کے لیے صحافیوں کو تمام ضروری سہولیات دستیاب رکھنے کی تاکید کی۔ معراج عالم کے سلسلے میں آج وادی بھر کی مساجد، خانقاہوں اور زیارت گاہوں میں شب بیداری کی روح پرور مجالس آراستہ ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوگی، جہاں نماز عشاء رات 10 بجے ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد رات بھر فرزندان توحید، درود و اذکار، ختمۃ المعظمات اور نعت و مناجات کی مجالس میں نماز فجر تک محو رہیں گے، جبکہ علماء حضرات فلسفہ معراج پر روشنی ڈالیں گے۔ کل نماز پنجگانہ پر موئے مقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرائی جائے گی۔ ایسی ہی تقاریب آثار شریف لال بازار، آثار شریف شہری کلاش پورہ، آثار شریف جناب صاحب سورہ، مکہ ہمہ پیروا، کعبہ مرگ، پنجورہ شوپیہ اور دیگر زیارت گاہوں اور درگاہوں پر منعقد ہو رہی ہے۔
खानकाह कदीम जामिया पांपोर में नमाज जुमा पर खिताब करते हुए मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने फ़लसफ़े मेराज पर मुफस्सल रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि वाक़े मेराज अज़मत आदम का असल सबूत है। मौलाना हमदानी ने मज़ीद कहा कि नमाज मुसलमानों के लिए मेराज है और नमाज की पाबंदी ही मसाइल और मुश्किलात से निजात का वाहिद रास्ता है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मेराज आलम सल्लम की मुक़द्दस तकरीब पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है। इस दौरान वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी ने आज सपहर दरगाह हज़रत बल का दौरा करके शब मेराज के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने वक्फ हुक्काम पर जोर दिया कि वो अकीदतमंदों के लिए तमाम सहूलियात बहाम रखें और इस अजीम शब के हसन इनेकाद को यकीनी बनाने में कोई कसर बाकी न रखें। इससे कबल उन्होंने आज लासीपुरा सनती मरकज़ पुलवामा में जदीद कोल्ड स्टोरेज सहूलत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए वक्फ चेयरपर्सन ने कहा कि ऐसी सहूलियत के क़याम से न सिर्फ बागबानी शोबे से वाबस्ता किसानों को अपने मेवे की भरपूर कीमत हासिल करने में मदद मिलेगी बल्कि रोज़गार के नए मौक़े भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत बागबानी शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की वादाबंद है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान ने शब मेराज के पेश नज़र आज हज़रत सैयद हसन सिमनानी रहमतुल्लाह के आस्तान आलिया जाकर वहाँ किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो ज़ायरीन के लिए पीने के पानी, सफाई सुथराई, बिला खलल बिजली की फराहमी के साथ साथ मुनासिब सलामती इक़दामात करें। महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक आज बाद दोपहर वादी के कई बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ जो आखिरी इत्तला मिलने तक जारी था। महकमे मौसमियात श्रीनगर सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि आने वाले दिनों में भी मौसमी सूरत हाल दिगरगुं रहेगी। उन्होंने कहा कि कल से 21 जनवरी तक अबरालूद मौसमी सूरत हाल के बीच मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और बारिशें हो सकती हैं, जबकि 22 से 25 जनवरी के दौरान बेशतर मकामात पर बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। नेक्स्ट जो WD है खासकर वो 22 शाम से जो अप्रोच करेगा और एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसके कारण वाइड स्प्रेड बारिशें बर्फबारी जो एक्सपेक्टेड है। और इस बीच जो है कुछ एक जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं खासकर पीर पंचाल रेंज के अंदर, चिनाब वैली के अंदर या साउथ कश्मीर के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे हैवी रेन स्नो की भी पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल जो एक मेजर वेट स्पेल की पॉसिबिलिटी है जिसमें सिग्निफिकेंट स्नो डेप्थ खासकर हायर ईस्ट के अंदर जो है देखा जा सकता है। और इस बीच जो है खासकर जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं, जोजिला की बात करें, साधना पास की बात करें, राजदान पास की बात करें, सिंथन टॉप या मुगल रोड की बात करें, तो ये सारे शहरें जो मुतासर हो सकते हैं। और ऐसे में ट्रैवलर्स, ट्रांसपोर्टर्स या टूरिस्ट हैं वो अपना जो ट्रैवल प्लान है उसको मौसम को मद्देनजर रखते हुए बनाएं। और जो ट्रैफिक का एडवाइजरी है या अपना एडमिनिस्ट्रेशन का जो एडवाइजरी है SOP उसको पूरी तरह पालन करें। और मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी आज ताज़ा बर्फबारी हो रही है जिससे सयाहों के चेहरे खुशी से खिल उठे। गुलमर्ग में मौजूद सैकड़ों सयाहों को बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होते हुए देखा गया, जबकि बड़ी तादाद में सयाह बर्फ़ से खेलते हुए भी नजर आए। इस मौके पर सयाहों ने कहा कि वो बर्फ़ देखने कश्मीर आए थे और अब बर्फबारी का नज़ारा करके उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। उधर एप्पल वैली अनंतनाग में भी सयाहों की भारी तादाद उमड़ आई है जो इस सेहत अफजा मकाम के हसीन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सयाहों ने कहा कि वो चिल्ला कलां की सख्त सर्दी का मज़ा ले रहे हैं। सयाहों की भारी आमद से इलाके में खासी चहल पहल है और सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद शादमान नज़र आ रहे हैं। यौम जमहूरिया के पेश नज़र वादी में हिफाजती इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए हैं। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के गिरदोनवा में इजाफी फोर्सेज दस्ते तैनात करने के अलावा जगह जगह नाके कायम किए गए हैं जिन पर आम राहगीरों की जाम तलाशी ली जा रही है। बख्शी स्टेडियम में मरकजी तकरीब के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए फोर्सेज के गश्त में तेज़ी लाई गई है और पूरे इलाके में तलाशियों का सिलसिला तेज़ किया गया है। शुमाली कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर को एक ख़त लिखकर उन्हें ईरान में दरमांदा कश्मीरी तलबा की फ़ौरी वतन वापसी के लिए इंतजामात करने की ताकीद की है। पार्टी बयान के मुताबिक इंजीनियर रशीद ने कहा कि मौजूदा हालात के पेश नज़र ईरान में कश्मीरी तलबा की सलामती ख़तरे में पड़ चुकी है और उन्हें बिला ताख़ीर वतन वापस लाने का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने आज हंदवाड़ा में पार्टी के अहदेदारों और कारकुनों के एक इजलास की सदारत की। इजलास के दौरान तंजीमी उमूर और पार्टी सरगर्मियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर शुरका ने अपने अपने इलाकों में अवाम को दरपेश मसाइल के बारे में उन्हें जानकारी दी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और MLA खानियार अली मोहम्मद सागर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में बुला खानियार के अहदेदारों के एक इजलास की सदारत की। अली मोहम्मद सागर ने पार्टी कारकुनान पर जोर दिया कि वह अवामी मसाइल के हल के लिए अपनी खदमात को जारी रखें ताकि पार्टी और अवाम के दरमियान रिश्ता मजबूत हो सके। उन्होंने पार्टी मंशूर में किए गए वायदों की तकमील की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हुकूमत मुकर्रर वक्त पर तमाम वायदे पूरा करेगी।
जम्मू कश्मीर मेडिकल काउंसिल के लिए साल 2025 कामयाबियों का साल रहा। 2025 के दौरान काउंसिल ने जहां 2381 डॉक्टरों की रजिस्ट्रेशन अमल में लाई, वहीं बैरून ममालिक से मेडिकल डिग्री याफ्ता 939 डॉक्टरों की भी मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन की गई। काउंसिल के सदर डॉक्टर सलीम खान ने दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि साल रफ्ता में काउंसिल की कारकर्दगी में कई गुना इजाफा हुआ है। जो पिछले साल का हमारा जो काम रहा है उसमें हमने 2300 से ज़ायद सर्टिफिकेट्स इजरा किए हैं, जो रजिस्ट्रेशंस है वो हमने दी हैं। उसमें से हमारा जो मेन रहा है वो हमारा जो J&K मेडिकल कॉलेज से वाबस्ता जो डॉक्टर्स पास आउट हैं उनमें हमने 1252 सर्टिफिकेट्स दिए हैं। उसके अलावा जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स बाकी ममालिक से यहाँ आके फिर ज्वाइन करते हैं तो वो 939 रही हैं। उसके अलावा रेसिप्रोकल में जो बाहर के डॉक्टर्स यहाँ आ जाते हैं 190 रजिस्ट्रेशन दिए हैं, जो पिछले सालों में सबसे ज़्यादा रही है। इसमें यह है कि जो हमारी ये कोशिश रही कि जो बाहर से डॉक्टर्स यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आते हैं उनके लिए हमने लाजमन ये रखा कि वो यहाँ पहले हमारे मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद ही वो यहाँ पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि कुछ कंप्लेंट्स आती थी विद रिगार्ड टू एथिकल इश्यूज़ या बाकी चीज़ें पेशेंट केयर के मतलब। सो हमारी ये कोशिश रही कि जितने से जो भी डॉक्टर्स यहाँ पे प्रैक्टिस करें उन सब की रजिस्ट्रेशन J&K में होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की वजारत दाखिला के माली मामलात से निमटने के लिए मरकज़ी वजारत दाखिला की डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर का आज वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह किया गया। मरकज़ी वजारत दाखिला के प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स डॉक्टर अजय शंकर सिंह ने इफ्तिताही रस्म अंजाम दी। इस मौके पर जोन की एक जायज़ा मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स ने मुख्तलिफ फोर्सेज के जवानों के माली मामलात के फौरी निपटारे पर जोर दिया। कुपवाड़ा के हजाज मार्केट में 9 और 10 जनवरी की दरमियानी रात को हुई चोरी के मामले को ज़िला पुलिस ने हल करके चोरी में मुलव्वस कई अफराद को पकड़कर उनसे माल मसरूक़ा बरामद कर लिया है। पुलिस ने वाक़े की इत्तला मौसूल होते ही केस दर्ज करके DSP हेडक्वार्टर मुबशर नियाज़ की सरबराही में तहकीकाती टीमें तश्कील देकर कार्रवाई शुरू की थी और महज चंद दिनों में चोरी के इस मामले को बेनकाब किया गया। वुलर झील में महाजिर परिंदों की आमद का सिलसिला बदस्तूर जारी है और अब तक लाखों परिंदों ने झील में डेरे डाले हैं। इस साल झील में कई नए अक़साम के परिंदे भी वारिद हुए हैं, जिनसे झील की खूबसूरती में इजाफा हुआ है। वुलर लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के जोनल ऑफिसर शौकत मकबूल ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि महाजिर परिंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए दिन रात निगरानी की जा रही है, जबकि परिंदों के लिए खुराक का भी माकूल बंदोबस्त किया गया है। मरकज़ी हुकूमत पार्लियामेंट के आइंदा बजट इजलास में बीजों से मुतल्लिक़ नया कानून पेश करेगी। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बिल का मकसद नकली बीजों और उनकी गैर कानूनी फ़रोख्त पर काबू पाने के साथ साथ किसानों के लिए सर्टिफाइड बीजों की दस्तयाबी को यकीनी बनाना है। भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी के कौमी सदर के इंतखाब की तारीख का ऐलान किया है। ज़िम्न में कागजात नामजदगी रवा माह की 19 तारीख को दाखिल किए जाएंगे और उसी दिन उनकी जाँच पड़ताल की जाएगी, जबकि इंतखाब 20 जनवरी को मुनक्कद होंगे। आज गांदरबल में सशस्त्र सीमा बल की 13वीं बटालियन ने ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले 25 नौजवानों को भारत दर्शन दौरे पर झंडी दिखाकर रवाना किया। तकरीब पर सशस्त्र सीमा बल के DIG इम्तियाज़ इस्माइल परे मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। नौजवानों का ये ग्रुप मुल्क के अहम तारीखी यादगारों का दौरा करने के साथ साथ काजीरंगा नेशनल पार्क भी जाएगा। वो आसाम के गवर्नर से मिलने के अलावा दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल के हेडक्वार्टर में SSB के डायरेक्टर जनरल से भी मुलाकात करेंगे। खबरों में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।